Good morning, Jai Hind students. Myself Manglara, your math teacher. A student, in the previous class, I have discussed some formula from the trigonometric chapter. In this class, also I am going to derive some formula from the trigonometric. See, without wasting your time, I am going to start formulas, and I will prove all the formula which today I will write here. Okay, and this formula are most important for you. A student, in the previous class I have done the formula sin 3a cos 3a and okay, now today I have to start from tan 3a. okay बच्चों, तो आज हम लोग को फार्मूला ऑफ tan 3a देखना है और tan 3a और सिंपल लॉजिक है यार, कैसे करेंगे है ना, इसको ब्रेक कर लेते हैं ना। tan a प्लस 2 क्लियर है, tan a प्लस 2a, that is tan of a plus b will be applied here. Tan a plus tan 2a upon 1 minus tan a tan 2a. ठीक है बच्चों, नाउ सी tan a, we are going to put the formula of 2 tan a, that is tan 2a 2 tan a upon 1 minus tan square a. 2 tan a upon 1 minus tan square a, 1 minus tan a 2 tan a upon 1 minus tan square a. ठीक है, चलो now we are going to take the LCM. See, this multiply by this term tan a minus tan cube a, tan a into 1 tan a into tan square a minus tan cube a plus 2 tan a. ठीक है बच्चों, आप और में क्या आने वाला है 1 माइनस tan स्क्वायर. आई एम नॉट बी प्राउड बिकॉज ऊपर और नीचे दोनों से कैंसिल हो जाएगा, है ना. अब यहाँ पे देखो 1 माइनस tan square a, 1 with this minus tan into 2 tan a, 2 tan square a upon 1 minus tan square, है ना. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में है 1 minus tan square a और यहाँ पे भी 1 minus tan square a, that will be cancelled. ओके, अब यहाँ पे देख लो क्या हो गया, tan a and tan 2a कितना हो जाएगा यहाँ पे यार, 3 tan a minus tan cube a upon 1 minus 3 tan square a. ठीक है बच्चों, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ tan 3a. प्रोसेस इज वेरी इजी. वी हैव टू राइट tan 3a in the form of tan a plus tan 2a. Now here I am going to apply the formula of tan of a plus b. b बोले तो 2a, formula is tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b. जहाँ जहाँ b है वहाँ पे 2a रखा है. और now c, we know the formula of tan 2a, that is 2 tan a upon 1 minus tan square a. ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोगों ने एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके सॉल्व किया और आफ्टर दैट वी गॉट आवर रिजल्ट 3 tan a minus tan cube a upon 1 minus 3 tan square a. ओके बच्चों, देख लो आराम से, है ना. 3 tan a minus tan cube a upon 1 minus 3 tan square a, दिस इज योर रिजल्ट. ठीक है, प्लीज स्टूडेंट नोटेट.
Okay, then बच्चों, the next formula is स्टूडेंट पहले हम लोग सारे फार्मूले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले फार्मूला डिराइव कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद देखो। Now we are going to find the result about sin C plus sin D cos C plus cos D, ठीक है। देखो अब इसके बाद हम लोग जो फार्मूला डिस्कस करने वाले हैं वह है sin C plus sin D एंड sin C माइनस sin D cos C plus cos D, ठीक है। ध्यान दें, आपको यहाँ पे एक फार्मूला देखना है sin C प्लस sin D का, दूसरा देखना है sin C माइनस sin D का। sin C प्लस sin D का फार्मूला होता है 2 sin C प्लस D बाई 2 इंटू cos C माइनस D बाई 2 एंड sin C माइनस sin D 2 cos C plus D by 2 into sin C minus D by 2, ठीक है बच्चों। sin C plus sin D, sin C minus sin D, then after we derive cos C plus cos D, cos C minus cos D, ठीक है। चलो देखो, प्रूफ बहुत आसान है, बहुत आसान, सिंपल 2 या 3 लाइन में हम लोग इस प्रूफ को कर लेंगे। स्टार्टिंग अपने को साइन ऑफ A प्लस B से करनी है ना। साइन ऑफ A प्लस B का फॉर्मूला बताओ। फॉर्मूला साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B होता है, वी नो ऑलरेडी। एंड फिर से यहाँ पे लिखते हैं साइन ऑफ A माइनस B साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B, ठीक है बच्चे। वाली हम sin C प्लस sin D की बात कर रहे हैं, तो इधर अपने को प्लस करना है ना, प्लस कर देंगे। चलो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन ऑफ A प्लस B प्लस साइन ऑफ A माइनस B, और स्टूडेंट्स दिस विल बी कैंसिल, cos A cos B प्लस में है एंड cos A cos B माइनस में है ना, बराबर, ठीक है। क्या आ गया यहाँ पे 2 sin A इंटू cos B, दिस इज इक्वेशन नंबर स्टार, ठीक है। अब इसी इक्वेशन में हमें A प्लस B एंड A माइनस B को C एंड D टाइप लिखना है ना। तो आप A प्लस B को C लेट कर लो एंड A माइनस B को आप D एज्यूम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ये C हो जाएगा और ये D हो जाएगा। नाउ हियर वी वांट द वैल्यू ऑफ A इन द टर्म ऑफ C प्लस D एंड वैल्यू ऑफ B इन द टर्म ऑफ अगेन C एंड D, है ना। अब इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे बच्चों, वी आर एडिंग इट, बी बी कैंसिल, 2A दैट इज C प्लस D बाई, अभी C प्लस D करते हैं, A की वैल्यू हो जाएगी C प्लस D बाई 2, और गेटिंग, एंड यहाँ पे फिर से आ जाओ, A प्लस B इज C एंड A माइनस B इज D, माइनस प्लस माइनस A कैंसिल हो बच्चों, 2B की वैल्यू C माइनस D, देन B विल बी C माइनस D बाई 2। अब आप समझ पा रहे होंगे, है ना, क्या करने वाले हैं। नाउ आई एम गोइंग टू पुट द वैल्यू ऑफ A प्लस B दैट इज C एंड वैल्यू ऑफ A माइनस B दैट इज D एंड A दैट इज C प्लस D बाई 2 एंड B C माइनस D बाई 2, ओके। सो C आफ्टर पुटिंग द वैल्यू वी आर एट द रिजल्ट। जस्ट मिनट बच्चों, देखो ध्यान से, इसको हटा रहे हैं यहाँ पे, इसको भी स्टूडेंट सी, it becomes sin C, it becomes sin D, and in the left and right hand side 2 sin A बोले तो C plus D by 2, B बोले तो into cos B C minus D by 2,
क्लियर बच्चा पार्टी? नोट कर लो, प्लीज नोट इट। चलो अभी समझ में आ गया आपने क्या इवेल्यूएट किया साइन सी प्लस साइन डी का। अब हम लोग साइन सी माइनस साइन डी करेंगे, समझ लो क्या करना होगा। साइन ऑफ ए प्लस बी एज इट इज, साइन ऑफ ए माइनस बी एज इट इज, दिस साइन प्लस बिकम माइनस एंड दिस विल बी कैंसिल्ड एंड वी गॉट 2 cos a sin b, 2 cos a cos b, cos a cos b ऐड करूंगा 2 cos a sin b। समझ पा रहे? तो ठीक है, मैं इसमें ही एडजस्ट कर रहा हूँ बट आपको लिखना है पूरा है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट, वी नो दैट sin of a plus b equal to sin a cos b plus cos a sin b, okay? Then write, we know sin of a minus b, sin a cos b minus cos a sin b, okay fine। अब आप इनको माइनस करो, सी माइनस माइनस एंड प्लस, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी एंड ये आप कटेगा तुम्हारा और ये तो बचा ही रहेगा एंड बिकम 2 cos a sin b, ठीक है? 2 cos a sin b, क्लियर है बच्चों? अब देखो, अब आप क्या करोगे यहाँ पे a प्लस बी को c एंड a माइनस बी को d, इनको ऐड करो है ना। b b कैंसिल होगा, 2a इक्वल टू c प्लस d, a विल बी c प्लस d बाई 2 एंड हेयर a प्लस b इक्वल टू c, a माइनस b इक्वल टू d एंड माइनस प्लस माइनस एक कैंसिल हुआ, 2b इक्वल टू c माइनस d, देन b इक्वल टू c माइनस d बाई 2। ओके बच्चों, अब आप यहाँ पे a एंड b है ना, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना एंड यू गॉट रिजल्ट साइन c माइनस साइन d इक्वल टू 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। ठीक है स्टूडेंट, are you getting? Please note it। हो गया बच्चा पार्टी डन। अभी दिख रहा है सब कुछ साफ साफ, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देख लो, साइन सी माइनस साइन डी 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, ठीक है? साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। क्लियर है स्टूडेंट्स? अच्छा ठीक है, अब हम लोग वी आर गोइंग टू प्रूव द फॉर्मूला ऑफ cos c प्लस cos d एंड cos c माइनस cos d। क्लियर है? नाउ ट्राई योरसेल्फ। सबसे पहले आप cos ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला लिखो एंड देन आफ्टर cos ऑफ a माइनस b का लिखो, ओके? फिर आपको आगे का स्टेप मैं समझाता हूँ। डू इट। ठीक है बच्चों, सी फर्स्ट ऑफ ऑल राइट फॉर्मूला ऑफ cos ऑफ a प्लस b, दैट विल बी cos a cos b माइनस sin a sin b, ठीक है? उसके बाद राइट फॉर्मूला ऑफ cos a माइनस b एंड बिकम cos a cos b प्लस साइन ए साइन। क्लियर है? डन।
अब आप क्या करने वाले हो इसको, नाउ वी आर गोइंग टू ऐड बोथ द इक्वेशन, मेक द प्लस साइन हियर एंड इट विल बी कैंसिल स्टूडेंट, इट बिकम cos of a plus b plus cos of a minus b and same term है, it become 2 times cos a cos b, 2 times cos a cos b। नेक्स्ट स्टेप आपको समझ में आ रहा है, ऊपर गेटिंग है ना। क्या करने वाले हैं, a प्लस बी विल बी सी, a माइनस बी विल बी डी, a प्लस बी विल सी एंड a माइनस बी डी। ओके स्टूडेंट्स, सी 2a प्लस किया इसको, b भी कैंसिल, व्हाट c प्लस d, a इक्वल टू c प्लस d बाई 2। क्लियर है। सिमिलरली माइनस करो यहाँ पे, a प्लस बी इक्वल टू सी, a माइनस बी इक्वल टू डी, हाँ। अभी माइनस प्लस माइनस, 2b विल बी c माइनस d, देन b विल बी c माइनस d बाई 2। ओके बच्चा, पार्टी आर गेटिंग। अब आप यहाँ पे आ जाओ बच्चों, c cos a plus b that is c and cos a minus b that is d, 2 cos a, 2 cos a, स्टूडेंट cos a बोले तो c plus d by 2, c plus d by 2 into cos b c minus d by 2। okay my dear students, are you getting? देख रहे हो आप, sin c plus sin d का फॉर्मूला भी एज इट इज था, sin c minus sin d का and cos c plus cos d का। then I hope you are able to solve the formula of cos c minus cos d, है ना। बस यहाँ पे माइनस करना है, समझ पा रहे हो, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, बाकी चीज़ें एज इट इज आ जाएंगी। तो ठीक है, मैं आपको आई एम गिविंग यू 20 सेकेंड टाइम टू कंप्लीट द फॉर्मूला ऑफ cos c minus cos d। बच्चा बॉडी, तो अब आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे माइनस कर रहे हो और ये माइनस हो गया, हाँ। क्या हो जाएगा यहाँ पे, cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी, और ये कैंसिल हो गया, -2 टाइम्स sin a sin b, और a प्लस बी c a माइनस बी डी कैंसिल हुआ, 2ac प्लस d a इक्वल टू c प्लस d बाई 2। फिर a प्लस b इक्वल टू c, a माइनस b इक्वल टू d, माइनस 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 2b c माइनस d c minus d by 2। now your formula cos c minus cos d -2 sin a equal to c plus d by 2, c plus d by 2 into sin b sin c minus d by 2। ठीक है स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग? बहुत सिंपल प्रोसेस था। वी हैव टू राइट द फॉर्मूला cos of a plus b, then write cos of a minus b, and we have to write minus sign here. After this the sign of this become change, and also sign of this become change, and cos of a plus b minus cos of a minus b ये कैंसिल हो गया। वी आर गेटिंग इन द राइट हैंड साइड -2 sin a sin b। और जैसा कि आप लोग अभी भी किए हो, a एंड b को इवैल्यूएट करना है बिलो, है ना। चलो बच्चों, ठीक है, नोट इट।
डन स्टूडेंट्स। अच्छा, अभी हम लोगों ने जो इन फार्मूले को डिराइव किया तो उसके बीच में हमारे पास 3-4 इंपॉर्टेंट फार्मूले भी हैं जिसको हम लोग फिर से देख रहे हैं। देखो, जैसे आपको ये दिस स्टेटमेंट यूज़ करना होगा एज ए फार्मूला, -2 sin A sin B, है ना। यदि आप माइनस साइन को हटाते हो, इफ़ यू आर रिमूविंग माइनस साइन फ्रॉम दिस साइड, तो दिस बिकम माइनस एंड दिस बिकम प्लस। आई मीन वी कैन से दैट cos of A minus B minus cos of A plus B equal to 2 sin A sin B। Are you getting? ठीक है, तो मैं इन चीज़ों को एक बार फिर से इन शॉर्ट में लिख रहा हूँ कि आपको sin C sin D cos C cos D, है ना, sin C माइनस sin D cos C माइनस cos D का फार्मूला डिराइव करते समय ये स्टेप आया होगा, है ना, और ये स्टेप अपने आप में खुद एक फार्मूला है। ओके, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला फॉर यू। ओके, तो चलो हम इसको सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है बच्चों, देखो जरा स्टूडेंट सी, मैंने आपको क्या बोला, आपको देखना है 2 sin A sin B, 2 cos A cos B, है ना। इसके बाद 2 sin A cos B, यहाँ पे cos ही करेंगे तो sin B का फॉर्मूला बन जाएगा, एंड 2 sin B cos। अभी देखो, इनमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है यार, एंगल इंटरचेंज है ना, ए बी बी है, तो आप इनमें से किसी एक को भी तैयार रखोगे तो दोनों काम हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें ये लिखना है 2 sin A sin B की वैल्यू कितनी होगी, 2 cos A cos B की वैल्यू कितनी होगी, 2 sin A इंटू cos B, है ना, 2 sin A इंटू cos A sin 2 हो जाएगा, 2 sin B इंटू cos B sin 2 भी हो जाएगा, 2 sin B इंटू cos A की वैल्यू कितनी होगी। तो जनरली बच्चों आप कंफ्यूज यदि कर जाओगे, इस फार्मूले को नहीं याद रख पाओगे, तो बस 1 मिनट का टाइम लेना, आप पूरे फार्मूले को ही डिराइव कर लेना, पूरा नहीं, इन शॉर्ट में। जैसे कैसे करोगे, यहाँ पे लिख रहा हूँ, साइन ऑफ A प्लस B प्लस साइन ऑफ A माइनस B, समझो, साइन ऑफ A प्लस B। अच्छा, मैं ठीक है थोड़ा क्लियर लिख रहा हूँ, आपको थोड़ा समझ में आए। साइन ऑफ A प्लस B यूज़ करना है आपको, एंड साइन ऑफ A माइनस B यूज़ करना है आपको। क्लियर? साइन ऑफ A प्लस B बोलो क्या होगा, साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B। इसकी वैल्यू बताओ, साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B। ठीक है ना बच्चों? देखो क्या चाहिए मुझे, हमें चाहिए 2 sin A 2 sin B। जब आप इनको ऐड करोगे तो ये कट जाएगा और ये मिलेगा। स्टूडेंट क्लियर है? तो अब आप समझ लो, एक स्टेप आया था अभी, बट मैंने इसको अलग से सिस्टमेटिक तरीके से आपके सामने रख रहा हूँ, बिकॉज ऑल दीज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला, है ना। चलो, तो अभी सी आप इसको ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 2 sin A cos B, 2 sin A, एक मिनट, वी आर गोइंग टू फाइंड 2 sin A sin B का फॉर्मूला, है ना। तो ये तो नहीं मिल रहा है, बट कौन सा मिल रहा है यहाँ से मुझे, 2 sin A cos भी मिल रहा है। ठीक है, 2 sin A cos भी मिल रहा है, ये नहीं मिला, 2 sin A sin भी नहीं मिला, 2 cos A cos भी नहीं मिला, बट व्हाट आई एम गेटिंग 2 sin A cos B, 2 sin A cos B। तो आप यहाँ पे लिख डालो स्टूडेंट, 2 sin A cos B का मतलब ये हुआ साइन ऑफ A प्लस B, साइन ऑफ A प्लस B एंड प्लस साइन ऑफ A माइनस B। ठीक है माय डियर स्टूडेंट। और सी, अब यदि आप इनको माइनस करते हो तो देखो ये माइनस हो जाएगा, अब ये कटेगा, आपको मिलेगा 2 cos A sin B, एंड दिस इज 2 cos A sin B, 2 cos A sin B, एंड दिस विल बी द रिजल्ट ऑफ साइन A प्लस B माइनस साइन ऑफ A माइनस B। आर गेटिंग? देखो बच्चों, एक बार साइन ऑफ A प्लस B का फॉर्मूला लिखा, सेकेंड टाइम साइन ऑफ A माइनस B का लिखा, एक बार ऐड किया तो मुझे 2 sin A cos B मिला, 2 sin A cos B, वो इसका रिजल्ट हो गया। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है।
और जब इसको सब्ट्रैक्ट किया फिर से क्या मिल रहा है, साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी, 2 cos ए साइन बी, दिस इज 2 cos ए साइन बी। क्लियर है स्टूडेंट? अब हमारा ये सेट बचा 2 sin ए साइन बी, 2 cos ए cos बी, तो ये साइन ऑफ ए प्लस बी एंड साइन ऑफ ए माइनस बी से नहीं मिला, ठीक है। साइन ऑफ ए प्लस बी एंड साइन ऑफ ए माइनस बी में साइन एंड कॉस दोनों इन्वॉल्व है, ठीक है। अब हम कॉस की बात करते हैं। सी स्टूडेंट, आई एम गोइंग टू राइट फॉर्मूला ऑफ cos ऑफ a minus b. टेल मी cos a cos b plus sin a sin b, and here cos of a plus b cos a cos b minus sin a sin b, ठीक है बच्चों। तो आप इसको देख लो एक बार। इफ हम इन दोनों को ऐड कर दें तो sin a sin b a कैंसिल होगा। व्हाट आई एम गेटिंग, 2 cos a cos b मिल रहा है ना, cos a cos b ऊपर भी है एंड cos a cos b यहाँ पे भी है, तो 2 cos a cos b मिल रहा है। नाउ सी वी आर गेटिंग द फार्मूला ऑफ 2 cos a cos b। कैसे मिल रहा है, इन दोनों को ऐड करके। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं व्हाट, cos ऑफ a minus b cos of a minus b plus cos of a plus b, है ना। क्लियर है बच्चों? ठीक है। इन द नेक्स्ट स्टेप नाउ आई एम गोइंग टू सब्ट्रैक्ट माइनस एंड माइनस दिस बिकम प्लस, ठीक है। तो देखो cos a cos b अभी कट रहा है, क्या रिजल्ट मिल रहा है, 2 sin a sin b और यहाँ पे है 2 sin a sin b, मींस दिस इज द फॉर्म ऑफ फॉर्मूला ऑफ cos of a minus b and minus cos of a plus b. Okay student, these are the 4 most important formula for you और आप इसको तैयार रखेंगे। प्लीज learn it all this formula, and if you have any confusion then try to find the formula by derivation method. First of all you write the formula of sin of a plus b, then sin of a minus b, then add and subtract. Definitely you got the result of these two, and after then you try to write the formula of cos of a minus b, cos of a plus b, then add and subtract, and you find the result of these two formula. Okay, ठीक है बच्चों। नाउ आप इसको नोट करो, इसके बाद हम फिर से बचे हुए फार्मूला डिस्कस कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट, डन। ओके फाइन। तो हम लोग ने अभी तक फॉर्मूले बहुत सारे डिस्कस कर लिए। देखो आपने sin 2a का फार्मूला देख लिया, cos 2a का फार्मूला देख लिया, tan 2a का फार्मूला देख लिया, sin ऑफ a प्लस बी डन, sin ऑफ a माइनस बी डन, cos ऑफ a प्लस बी डन, cos ऑफ a माइनस बी भी कंप्लीट हो गया, tan ऑफ a प्लस बी डन, tan ऑफ a माइनस बी भी कंप्लीट हो गया, cot ऑफ a प्लस बी भी हो गया है, sin 3x बच्चों ये भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट इज द cos 3x, इट इज़ ऑल्सो कंप्लीट। tan 3x ये भी डन हो चुका है, और उसके बाद sin c sin d ये अभी हम लोग किए ही है। तो आई होप कि अब हम लोग ने मैक्सिमम फार्मूला स्टूडेंट डिराइव कर लिए है ना। वी हैव डिस्कस मैक्सिमम फार्मूला ऑफ द एक्सरसाइज, ठीक है बच्चों। तो अभी हम लोगों ने फार्मूला जो आपके एनसीईआरटी बुक्स में रिलेटेड आपसे था, आपके सिलेबस में था, वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रखते हैं, और ये क्वेश्चंस बहुत आसान है जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं स्टूडेंट्स। देखो जनरली हम क्वेश्चन जो पिकअप कर रहे हैं वह आपके फार्मूले पे बेस्ड है, तो इट वाज जस्ट एप्लीकेशन ऑफ द फार्मूला। तो एक तरीके से हम ये भी देख लेंगे कि हमारे दिमाग में फार्मूला कितना सेट हुआ, है ना। चलो
Student, this is the exercise 3.3 and I am going to solve question number 6. ठीक है, देखो question number 1, 2, 3, 4, 5 is the different question. There is no any use of this formula. वो बहुत सिंपल है, जहाँ पे हमको वैल्यूज रखनी है sin pi by 4 cos pi by 4 cos pi by 3 का रिजल्ट आ जाएगा। तो उसको भी हम लोग करेंगे, बट अभी फार्मूला हमने कंप्लीट किया है तो हम फार्मूले को चेक करते हैं कि हम क्या उसको अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट, एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 6, cos pi by 4 minus x, cos pi by 4 minus x and cos pi by 4 minus y, cos pi by 4 minus y and minus sin pi by 4 minus x, sin pi by 4 minus y इक्वल टू स्टूडेंट है तुम्हारे पास इक्वल टू स्टूडेंट sin of x plus y, sin of x plus y। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन cos pi by 4 minus x, cos pi by 4 minus y, sin pi by 4 minus x and sin pi by 4 minus y। तो अभी कितना आसान है, एक लाइन के अंदर हो जा रहा है क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चे इसको समझ भी गए होंगे कि यस सर, दिस इज जस्ट लुकिंग लाइक एज ए cos a cos b minus sin a sin b and cos a cos b minus sin a sin b is the formula of cos of a plus b, है ना। क्लियर होगी बात? तो चलो, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज cos pi by 4 minus x, cos pi by 4 minus y minus sin pi by 4 minus x, sin pi by 4 minus y। ठीक है बच्चों, चलो अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख ले रहे हैं ना, पाई बाई 4 माइनस एक्स ए हो गया एंड पाई बाई 4 माइनस वाई बिकम बी। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, और यदि किसी को प्रॉब्लम हो रहा है तो दे लेट पाई बाई 4 माइनस एक्स इज ए एंड पाई बाई 4 माइनस वाई इज बी। नाउ लेफ्ट हैंड साइड बिकम cos a cos b minus sin a sin b minus sin a and sin b। ओके, चलो ये फॉर्मूला किसका है, cos of a plus b का है, cos of a plus b and this is the cos of a मतलब pi by 4 minus x, b pi by 4 minus y। ठीक है, समझ पा रहे? अब देखो पाई बाई 4 मतलब पाई बाई 2, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, इट्स बिकम cos पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस वाई, है ना, माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है, चलो नाउ इट्स बिकम cos पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस वाई। बच्चों यदि इसे हम थीटा मान ले, इफ यू लेट जस्ट एज ए थीटा, x प्लस वाई इज थीटा, cos pi by 2 minus theta, cos 90 minus theta, it is sin theta, sin of x plus y। क्लियर है स्टूडेंट? बहुत सिंपल है, a b एंगल सेम है इसलिए a and b कर लिया, and cos a cos b minus sin a sin b, formula cos of a plus b। now putting the value of a and b, we are getting pi by 2 minus x minus y, माइनस को कॉमन किया, it become x plus y, you can assume it theta, आप इसको थीटा ले सकते हो। नाउ cos 90 आई मीन cos pi by 2 minus theta is sin theta, that is sin theta बोले तो x plus y, this is your result। ठीक है, देखा आपने कितना आसान था ये क्वेश्चन। यदि हम इसको इतना एक्सप्लेन नहीं करते तो सिर्फ एक लाइन में होता है cos a cos b minus sin a sin b, आई विल राइट डायरेक्टली दिस cos pi by 4 minus x plus cos pi by 4 minus x plus pi by 4 minus y, इतने से ही अपना ये रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, बट मैं आपको समझा रहा था इसलिए मैंने इसको एज्यूम किया। ठीक है बच्चों, नोट इट।
डन बच्चों, अब आ जाओ आप, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है इसके बेस पे। अच्छा स्टूडेंट, अब आप क्वेश्चन नंबर 6 के बाद एक और छोटा सा क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, tan पाई बाई 4 प्लस एक्स अपॉन tan पाई बाई 4 माइनस एक्स। क्वेश्चन नंबर 7। Student, question is tan pi by 4 plus x, tan pi by 4 plus x upon tan pi by 4 minus x, and this is equal to 1 plus tan x upon 1 minus tan x whole square। ठीक है, समझ पा रहे हो आप कितना सिंपल है। वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड एंड आफ्टर दैट वी हैव टू राइट द फॉर्मूला ऑफ tan ऑफ a प्लस b इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर tan ऑफ a माइनस b, और इसके बाद रिजल्ट तुम्हारा मिल जाएगा। ठीक है, चलो लेफ्ट हैंड साइड और tan pi by 4 plus x and tan pi by 4 माइनस एक्स, tan a ऑफ b का फॉर्मूला लिखो, और tan पाई बाई 4 इंटू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, एंड स्टूडेंट ऑलवेज राइट इक्वल साइन इन फ्रंट ऑफ मेन डिवीजन, है ना। तो देखो ये tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला इतना लिख दिया, इसके बाद ये वाला अपॉन राइट हियर मेक द साइन ऑफ इक्वल, एंड नाउ दिस tan पाई बाई 4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan x। क्लियर है बच्चा बॉडी? tan पाई बाई 4 1 होता है तो 1 प्लस tan x 1 माइनस tan x, है ना। यहाँ पे देखो 1 माइनस tan x and 1 plus tan x. We have to prove the value of tan pi by 4, that is 1. Now I am going to write here equal to tan pi by 4 1 plus tan x upon 1 minus tan x 1 minus tan x upon 1 plus tan x। क्लियर है बच्चों? अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, सी क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 plus tan x upon 1 minus tan x, and this is multiplied by 1 plus tan x upon 1 minus tan x। देख लो 1 plus tan x 1 plus tan x 1 plus tan x whole square and 1 minus tan x 1 minus tan x, that is 1 minus tan x whole square। क्लियर है? तो कितना आसान था ये, आप देख रहे हो। बस एक लाइन काम था, आपने को राइट करना था tan ऑफ a plus b का फॉर्मूला एंड नीचे tan ऑफ a minus b का फॉर्मूला, देन आफ्टर वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ tan pi by 4 which is 1, and after that we find our result। ठीक है बच्चों, नोट इट, है ना। देखो 1 plus tan x 1 plus tan x equal to what, 1 plus tan x whole square upon 1 minus tan x, मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, सी 1 plus tan x whole square upon 1 minus tan x whole square, this is your right hand side, हाँ, this is your right hand side। नोट करो बच्चों।
डन स्टूडेंट्स। चलो ठीक है बच्चों, अब इसके बाद एक और क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ और टाइम, ठीक है, हम लोग का समय भी हो ही चुका है। बस एक क्वेश्चन ले लेते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 11। स्टूडेंट, इन द क्वेश्चन नंबर 11 आई हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला cos c माइनस cos d, ठीक है। बहुत सिंपल है, विद इन अ मिनट आई विल सॉल्व इट। अच्छा, क्वेश्चन है cos ऑफ 3π/4 प्लस एक्स, cos ऑफ 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos ऑफ 3π/4 माइनस एक्स इक्वल टू माइनस रूट साइन एक्स, माइनस रूट 2 साइन एक्स, है ना। cos 3/4 प्लस एक्स माइनस cos 3/4 माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टाइम्स रूट 2 साइन एक्स। क्लियर है स्टूडेंट्स? क्या होगा यहाँ पे? इन लेफ्ट हैंड साइड वी आर गोइंग टू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ cos c माइनस cos d, है ना। चलो, स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स। क्लियर है? ठीक है, क्या होगा फॉर्मूला? सी देखो, cos c माइनस cos d माइनस 2 साइन c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2, ठीक है। माइनस 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। फाइन, माइनस 2 साइन c प्लस d, c, this is whole c and this is whole d, and c plus d 3π/4 plus x plus 3π/4 minus x upon 2, ठीक है, into sin c minus d 3π/4 plus x माइनस अप्लाई करूंगा यहाँ पे, तो दिस माइनस दिस बिकम प्लस 3π/4 प्लस एक्स बाई 2। ओके बच्चों, ये x इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से देखो 3π/4 कितना 6π/4 एंड 6π/4 डिवाइड बाई 2 अगेन बिकम व्हाट 3π/4। दिस गिव्स माइनस 2 साइन 3π/4। देख लो यहाँ पे x से कैंसिल हुआ, 3 and 3 कितना 6π and we divide by 2 become 3π/4, तो चलेगा ही। और now see here 3π/4 cancel, sin 2x by sin x plus x sin 2x हो जाएगा and by 2 करेंगे आएगा sin x। देखो x कितना 2x डिवाइड बाई 2x, है ना। अब आप देखो sin 3π/4 की वैल्यू इवेलुएट कर लेंगे आप। हम लोगों ने इसके पहले वाले एक्सरसाइज में कन्वर्जन देखा था, कैसे लिखेंगे इसको हम लोग? माइनस 2 साइन पाई माइनस π/4। चेक कर लो एक बार, पाई माइनस π/4, 4 into pi 4π minus pi 3π/4, it means we are okay, and into sin x, ठीक है बच्चों। ASTC याद आ रहा है? ASTC, दिस इज द प्लेस ऑफ पाई, है ना। आप इसके बाद माइनस करोगे कहाँ पे जाओगे? सेकेंड क्वाड्रेंट में, और वहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है, तो ठीक है, तो माइनस साइन एज इट इज आ जाएगा नीचे, माइनस 2 साइन एंड पाई माइनस थीटा साइन थीटा, इट इज π/4 इंटू साइन एक्स। ओके स्टूडेंट, साइन π/4 दिस इज 1/√2, देन माइनस 2 अपॉन √2 एंड साइन एक्स, ठीक है स्टूडेंट। रिजल्ट इज माइनस √2, तो आप 2 को लिख सकते हो √2 इंटू √2 एंड 1/√2 विल बी कैंसिल। दिस इज द रिजल्ट माइनस √2 साइन एक्स, ठीक है बच्चों। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सिंपल। इस फॉर्मूले से आपको क्या समझ में आया कि हम यहाँ पे cos c माइनस cos d का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, और जब आपने cos c माइनस cos d का फॉर्मूला अप्लाई किया तो
तो बस देखो -2 sin c प्लस d। अच्छा, बहुत सारे बच्चे c प्लस d को ऐड करके बाई 2 करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे समझाना था इसलिए मैंने c के प्लेस पे c लिखा, फिर प्लस, फिर d लिखा, बाई 2 किया। हाँ, उसका रिजल्टेंट कितना है 3π/4, जिसको आपने कन्वर्ट किया पाई माइनस π/4 एंड सी ASTC प्लान। दिस इज द पाई प्लेस, जहाँ पे पाई माइनस थीटा करने पर आप सेकंड में जाओगे और सेकंड में साइन हमारा पॉजिटिव होता है। ओके स्टूडेंट, आर यू गेटिंग? चलो बच्चों ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड जितने भी फार्मूले थे उसको कंप्लीट किया जो आपके सिलेबस में था, फिर हमने कुछ क्वेश्चंस किया और नेक्स्ट क्लास में आई विल ट्राई टू कंप्लीट योर नेक्स्ट एक्सरसाइज। ठीक है स्टूडेंट, so now your class is over. Thank you, have a nice day, and student stay at home, be safe. Thank you.